ہندوستان میں یہ عقیدہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ایشور بعد انسانوں کی شکل میں ظہور لیتا ہے۔ اسی عقیدے کے مطابق سری رام چندر، سری کرشن اور مہاتما بدھ کو ایشور کے اوتار سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مذہبی پیشواؤں کو ایشور کے اوتار سمجھ کر ان کی مورتیوں کو بھگوان کے روپ میں پوجا بھی گیا۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ مورتیاں مہاتما بدھ کی بنائی گئیں اور سری رام چندر اور سری کرشن سے زیادہ ان کی پرستش کی گئی، کیونکہ بدھ دھرم ہندوستان سے نکل کر پورے مشرق بعید میں پھیل گیا تھا۔ مہاتما بدھ دیوتاؤں کے قائل نہ تھے، خدا کو ایک مانتے اور نجات آخروی پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد ان کے راکھ کی پوجا نہ کی جائے، مگر یہ حقیقت بڑی دلچسپ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پوجا انہی کی ہوتی ہے۔ ارے شاسترو، یہ باتیں تو آدمی اپنی عقل سے بھی جان لیتا ہے۔ تو مجھے ان جنگلوں کے بارے میں بتا۔ میرے حساب کے مطابق درندوں کو یہاں ہونا چاہیے، پھر کیوں نہیں ہیں؟ وہ اس لیے کہ رتنا گری کے ارد گرد بڑے اونچے پہاڑ ہیں اور جو درندے یہاں پہلے سے رہتے تھے انہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم مشرقی جنگل کی طرف چلتے رہے، چلتے چلتے اس نے بتایا 3 صدیاں پہلے جب اس وادی میں ساؤ گاری کی عمارت تعمیر کی گئی، ان جنگلوں میں انسانوں کے ساتھ ساتھ درندے بھی رہتے تھے اور ساؤ گاری کے بعد بخشوان کا لقمہ بنے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے بخشو روپا اور باٹی پورا چلے گئے، مگر ساؤ خاندان کے بزرگوں نے بعض شکاریوں کو دعوت دی اور اس طرح تمام خطرناک درندوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ چند سال پہلے نہ جانے کہاں سے ایک پہاڑی چیتا وادی میں آ گھسا، جس نے بہت سے ہرن اور چکارے ختم کر دیے، مگر ایک برفانی ریچھ کے ساتھ مقابلے میں چیتا اور ریچھ دونوں مارے گئے اور اس کے بعد یہاں کوئی درندہ نہیں آیا۔ بہرحال یہ کہانی سننے کے بعد اس خیال کی تصدیق ہو گئی کہ یہاں درندے کسی وقت ضرور آباد رہے اور چونکہ شروع میں ہی ان کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، لہٰذا ان کی نسل آگے نہیں چل سکی۔ لیکن کسی بھی جانب سے کوئی بھولا بھٹکا باغ چیتا اس سورگ میں آ سکتا اور رتنا گری کے جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کے علاوہ ساؤ گاری کے باسیوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتا تھا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد ہم مشرقی پربت کی ترائی میں پہنچ گئے اور ایک گھنے جنگل کے کنارے پھرتے رہے۔ اس جنگل کا نظارہ اتنا دل فریب تھا کہ جی چاہنے لگا کہ یہیں ایک کٹیا بنا کر آباد ہو جاؤں۔ مہاگنی کے علاوہ چیل اور ربڑ کے درختوں کے جھنڈ بھی تھے اور ایک جاتب نرکلوں کا بیلا دور تک چلا گیا تھا۔ چند ایک چکارے بھی نظر آئے جو گردنیں اٹھا کر ہمیں حیرت سے دیکھتے رہے، پھر گھاس چرنے میں مصروف ہو گئے، جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ یہاں شکار نہ ہوتا تھا۔ دوپہر کی سیر سے لوٹے تو بھوک خوب چمک اٹھی تھی، سیر ہو کر کھانا کھایا اور سو گیا۔ پھر میں ہر روز رتنا گری کے کسی نہ کسی جنگل کا رخ کرتا اور سیر و تفریح سے لطف اٹھاتا۔ دراصل میں سندر وادی کے سارے اہم مقامات اور راستے دیکھ لینا چاہتا تھا۔ ان ایام میں جل پنا صبح کے وقت میرے کمرے میں آ کر ناچ کلا کے بارے میں میری کتابی ودیا سننے آ جاتی، مگر میں نے ابھی اسے رام کہانی سنانے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ دراصل میری خواہش تھی کہ وہ خود ہی کسی روز اپنے جیون کی کتاب میرے سامنے کھول دے۔ البتہ اس عرصے میں مجھ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ وہ ساؤ گاری میں بھگوان کی داسی کہلاتی اور بڑی عزت کی نظروں سے دیکھی جاتی تھی۔ وہ یہاں صرف سروپ ساؤ جی یا پروہت گنجال کی پابند تھی اور اپنے بھکتی ناچ کی وجہ سے سب کے دلوں پر حکومت کرتی تھی۔ ایک دن میں شاستروں کے ہمراہ مہاگنی کے اس جنگل سے لوٹ رہا تھا جس کا سلسلہ رتنا گری کی شمالی ڈھلانوں سے شروع ہو کر میلوں تک چلا گیا تھا۔ اس نے چلتے چلتے اچانک پنا کا ذکر چھیڑ کر مجھے حیران کر دیا۔ پربھو، جب آپ ساؤ گاؤں میں نہیں آئے تھے پنا بہت کم باہر نکلتی اور اپنا سارا وقت بھکتی پوجا میں گزار دیا کرتی تھی، مگر اب… وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا اور میں نے بے چین ہو کر پوچھا، اب کیا ہے؟ وہ رک کر عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی گول گول آنکھوں میں شبے کی جھلکیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں جواب دیا، اب اس کا زیادہ وقت آپ کے پاس یا آپ کے انتظار میں بیت جاتا ہے اور یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ صاف صاف بات کرو شاسترو، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں آپ کی طرح ودوان نہیں پربھو، پر تھوڑی سی پریم ودیا تو ہر آدمی کو آتی ہے۔ پریم ودیا
हाँ प्रभु, ये प्रेम विद्या किसी पाठशाला में पढ़ाई नहीं जाती, आप से आप आ जाती है। अगर पिन्ना मुझसे मिलने आ जाती है तो नाच कला सीखने समझने के लिए उसका प्रेम विद्या से क्या वास्ता। मेरे हाथ में महागनी की एक लंबी छड़ी थी, मैंने वो छड़ी उस पर लहराई तो शास्त्रों किसी बंदर की तरह उछलकर परे हट गया। मैंने गुस्से से कहा, क्या तू समझता है कि मैं पन्ना से प्रेम करने लगा हूँ? वो मैंने खेद अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मेरे समझने ना समझने से क्या होता है, पर आजकल पन्ना आपके कमरे के चक्कर काटती रहती है और जब आप उन्हें नहीं मिलते तो बेचैन सी क्यों हो जाती है। मैंने परेशान नज़रों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि वो मेरे पास नाच विद्या सीखने आती है। फिर उसका ये सवाल बिल्कुल बेमैनी या इंतहाई मैनी खेल था। क्या तू नहीं जानता कि वह मेरे पास क्यों आती है? प्रभु, सावगारी में सिर्फ मैं नहीं और लोग भी रहते हैं और पन्ना को आपके कमरे में आते जाते देखते हैं, मगर वो नहीं जानते कि पन्ना आपके पास क्यों आती है। ये अल्फाज सुनकर मैं चौंक उठा। उसने बताया, अभी कल की बात है। पुरोहित गंजाल ने मुझसे पूछा था कि ये पन्ना आजकल कशीप जी के पीछे क्यों फिरती है। मैंने जवाब दिया कि कशीप जी संगीत, कला और नाच विद्या के भी ज्ञानी हैं और पन्ना उनसे नाच विद्या सीखने की आशा रखती है। जिस पर पुरोहित गंजाल बड़ा हैरान हुआ। कुछ समझे प्रभु, अगर यही बात किसी दिन मालिक ने मुझसे पूछ ली तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? तो इसमें झूठ क्या है? अपनी नाच विद्या ही सीखने तो आती है, पर वो सीखने नहीं, आपको कुछ सिखाने आती है। शास्त्रों के होंठों पर एक शरीर सी मुस्कुराहट थी और गोल गोल आंखों में मैनी खेल चमक। मेरा ख्याल है कि वो आपसे प्रेम करने लगी है। आप उसे नाच विद्या सिखा रहे हैं और वो आपको प्रेम विद्या पढ़ा रही है। हष्ट और मैंने उसकी बात को तमस्कर में उड़ाने की कोशिश की। अरे मूर्ख, मुझे आज तक दुनिया की किसी औरत से प्रेम नहीं हुआ, ना हो सकता है, क्योंकि मेरे जीवन की किताब में औरत के प्रेम का कोई वर्क ही नहीं। समझा? ये एक नई बात मालूम हुई प्रभु। हर आदमी के जीवन की किताब में प्रेम का वर्क जरूर होता है, मगर मेरे जीवन की किताब खाली है। आपके जीवन में प्रेम नहीं तो ना सही, मगर आप पन्ना की बात कैसे कर सकते हैं? उसके जीवन की किताब में तो प्रेम पत्र होगा, आप उसे प्रेम करने से नहीं रोक सकते। मुंतकी शास्त्रों यकलख्त मुझे 100 साल का बूढ़ा मुदब्बर नजर आने लगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा, सुन, अव्वल तो पन्ना मुझसे प्रेम करने नहीं, सचमुच विद्या सीखने आती है, और अगर तेरा ख्याल ठीक है तो भी मुझे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। ये तो ठीक है प्रभु, आज आपको पन्ना से प्रेम नहीं, मगर कल हो भी सकता है। मैंने एक बार फिर उसकी तरफ छड़ी लहराई। उसने फिर कलांच भरी और दूर खड़ा मुस्कुराने लगा। अरे शास्त्रो, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही पन्ना को समझा दूंगा कि मुझसे ज्यादा ना मिले, ना ही कोई आशा रखे। नहीं प्रभु, आप ये हरगिज नहीं कह सकोगे। क्यों नहीं कह सकूंगा? इसलिए कि ये बात सुनकर पन्ना का दिल टूट जाएगा। फिर तू ही बता, मैं क्या करूं? अभी आप कुछ ना करो और चुप रहो, वक्त आने पर मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लूंगा, मगर आपको पुरोहित गंजार से बचना होगा। समझे ना मेरी बात? हम फिर अपने रास्ते पर हो लिए। मैं दिल ही दिल में शास्त्रों का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने किस खूबसूरती के साथ मुझे कबल अज वक्त होशियार कर दिया, वरना मुमकिन है कि किसी बेहतियाती से ना सिर्फ स्वरूप जी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता, बल्कि किसी परेशानी में मुब्तला हो जाता। गालबन शास्त्रों का मतलब भी यही था कि मैं जरा एहतियात बरतूं। उसने पुरोहित गंजार से खास तौर पर खबरदार किया था। जब हम सावगारी के फाटक पर पहुंचे तो शाम गहरी हो गई थी और चिराग रोशन हो गए थे। अभी बागीचे से गुजरकर गुलाम गर्दश में कदम रखा था कि पीगू मुझे मिल गया, जो कल किसी खास काम से रूपा गया था। उसने बताया, मालिक ने कहा है कि आप आते ही उनसे मिलें और खाना भी उनके साथ ही खाएं। शास्त्रों तो वहीं से मगरबी फसील की बुर्जी की जन्म हो लिया, क्योंकि एक ही दिन पहले उसकी सयामी बिल्ली सोमी ने 4 प्यारे प्यारे बलूंगड़े जने थे, जिन्हें मगरबी बुर्जी में रखा गया था। शास्त्रों के बकौल वो बुर्जी सोमी और उसके स्वर्गवासी प्रीतम रामा की मुस्तकिल रिहायशगाह और उनके प्रेम की यादगार थी। वहां वो सोमी के नए कुंबे की देखभाल खुद करता था और मैं स्वरूप जी से मिलने की खातर पीगू के हमरा हो लिया और वो अपने कमरे मुलाकात में शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। उस कमरे में कदीम नादर अशिया के अलावा, जिनका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, एक पुराना फानूस भी छत के साथ अवीजा था,
जिस में बीक वक्त दर्जनों शमें रोशन थी और उनकी रोशनी से कमरा का नूर बना हुआ था। उन्होंने मुझे अपने करीब एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और पीगू से कहा, खाना यहीं ले आओ। वो कमरे से निकला तो सरूप जी ने खाकी कागजों में लिपटी हुई एक इंतहाई बोसीदा किताब निकाली, जिसके अवराक मटियाले, मोटे, भद्दे और बड़े खस्ता से थे। ये कोई कलमी नुस्खा था जो कदीम असामी जुबान में लिखा हुआ था। कलमी किताब मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगे, थारो केशव, ये इंतहाई कीमती और नायाब कलमी नुस्खा मेरे एक दोस्त ने रियासत मणिपुर से भेजा है और पीगू आज ही रूपा से लेकर आया है। इसमें भगवान बुद्ध की कदीम मूर्तियों की तारीख दर्ज है। मैं चाहता हूं कि पहले तुम इसका मुताला करो, मैं बाद में पढ़ूंगा, फिर हम आपस में तबादला ख्यालात करेंगे। ये कलमी नुस्खा दरअसल मणिपुर के राजा की मलकियत है और उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर भेजा है। यूं तो उसमें भगवान बुद्ध की बहुत सी नादर और तारीखी मूर्तियों का जिक्र है जो आज भी दुनिया के बाद अजायब घरों और पगोडों में मौजूद होंगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम भगवान बुद्ध के बाद पहली सदी में तैयार की जाने वाली पीतल की मूर्तियों पर गहरी नज़र से गौर करो और फिर उनकी एक अलग फहरिस्त तैयार करो। मैं उनकी बात सुनते ही चौंक उठा। जहन में तरह तरह से वसवसे पैदा होने लगे। आखिर स्वरूप जी पीतल की मूर्तियों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझे वो दिन याद आए जब मैं बीए के इम्तिहान की तैयारियां कर रहा था तो भगवान बुद्ध की मूर्तियों पर उनका एक तहलका खेज मजमून छाया हुआ था और उन्होंने स्कॉलरों को इन्हीं मूर्तियों के बारे में मजीद तहकीक की दावत दी थी, जिस पर मैंने हज़ारों मूर्तियों की फहरिस्त शाया कर दी थी। फिर उन्होंने ज्योति पुत्र के एडिटर की मार्फत फरमाइश की थी कि मैं भगवान बुद्ध की वफ़ात के बाद पहली सदी में तैयार होने वाली सिर्फ पीतल की मूर्तियों के बारे में मजीद तहकीक करूं। आज वह पुरानी और बोसीदा कलमी किताब उसी मकसद के लिए मेरे सुपुर्द कर रहे थे और मैं दिल ही दिल में हैरान था कि आखिर पीतल की मूर्तियां ही क्यों, और वो भी पहली सदी की। ये सवाल मेरे ज़हन में उस वक्त भी पैदा हुआ था, मगर मैं इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ़ हो गया और आज जब वो 200 रुपये माहवार पर उनका सेक्रेटरी मुकर्रर हो चुका था, ये सवाल फिर मुझे परेशान कर रहा था। कहीं उन्होंने इसी मकसद के लिए तो मुझे नौकर नहीं रखा, मगर महज मूर्तियों की तहकीक के लिए इस कदर रुपया खर्च करने का मकसद। मैंने सोचे में गुम था कि उनकी आवाज़ सुनाई दी। क्या सोचने लगे रुकेशव? कुछ नहीं, और मैंने उनसे अपनी जहनी परेशानी का आधार मुनासिब ना समझा और बोला, ये किताब बहुत पुरानी मालूम होती है। हाँ, और बोसीदा भी है, ज़रा एहतियात से पढ़ना, कहीं इसके अवराक फट ना जाएं। इसकी दूसरी कापी अब दुनिया भर में कहीं दस्तयाब नहीं हो सकती। जी में आई, पूछो तो सही, आखिर पीतल की मूर्तियों में क्या रखा है? भगवान की चांदी सोने की मूर्तियां भी तैयार हुई हैं, उन्हें क्यों नज़रअंदाज किया जाए? मगर ख्याल आया कि पीतल की मूर्तियों के साथ ज़रूर कोई पुरअसरार बात वाबस्ता है जिनका जिक्र वो मुनासिब नहीं समझते। इतनी देर में पीगू खाना ले आया। खाने के दौरान भी वो यही ताकीद करते रहे कि किताब में जहाँ पीतल की मूर्तियों का जिक्र आए उसे अलहदा कागज़ पर नोट करता जाऊँ। खाने के बाद उन्होंने मुझे रुखसत कर दिया और कलमी नुस्खा उठाकर मैं अपने कमरे की तरफ चल दिया। ये पहला काम था जो साओगारी में मेरे सुपुर्द किया गया था, इसलिए मेरा फ़र्ज था कि स्वरूप जी की हदायत के मुताबिक पूरी तवज्जो के साथ किताब का मुताला करूं। मैं राहदारी से गुजरता अपनी रिहाइश गाह में आया और चूबी जीना तय करके कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर ठठक गया कि खौंटी के साथ लालटेन जल रही है। हैरान हुआ कि लालटेन किसने जलाई। उसकी रोशनी में बिस्तर पर नज़र पड़ी तो दिल धक से रह गया। जल पन्ना बड़ी बेतकल्फ़ी से बिस्तर पर दराज गहरी नींद सो रही थी। यकीनन मेरी बौखलाहट काबिल दीद होगी, मगर भगवान का शुक्र है कि यह मंजर देखने वाला कोई और नहीं था। मैं हैरत पाश नज़रों से उस फितना ख्वाबीदा को देखने लगा। वो बड़े दिलकश अंदाज में लेटी थी और नींद की हालत में उसके बदन के जौहर कुछ और खुल गए थे। लालटेन की जर्द रोशनी में उसका रूप आकाश की सुंदर अप्सराओं को भी मात कर रहा था। भरपूर जवानी और दमकता हुआ हुस्न जलपन्ना की शक्ल में मेरे बिस्तर पर एक क़यामत माहू आराम था। मैं सहरज़दा हालत में गुमसुम खड़ा देखता रहा, मगर उसे जगाने या कमरे में ठहरने की जुर्रत न कर सका। शास्त्रों ने आज ही तो एहतियात की तरफ तवज्जो दिलाई थी। आज ही साओगारी में मुझे पहला फ़र्ज सौंपा गया था और मैं रात ही को किताब का मुताला करना चाहता था।
फौरन एक फैसला किया, दबे पांव कमरे से निकला कि कहीं पिन्ना की नींद न टूट जाए। फिर तेज तेज कदमों से राहदारी अबूर करके बैरूनी गुलाम गर्दश में आ गया। दूर मगरबी फसील की बुर्जी के नीचे रोशनी का हाला थरथरा रहा था। हवा की तरह उड़ा वहां जा पहुंचा। शास्त्रो सोमी के कुंभे से मिलकर बुर्जी से निकल रहा था और उसने चिराग आगे बढ़ाकर गौर से देखा और मुझे परेशान और बदहवास देखकर बोला, क्या हुआ प्रभु? अरे शास्त्रु, होना क्या था? वो पन्ना है ना, वो इस वक्त मेरे बिस्तर पर सो रही है। भला मैं वहां कैसे बैठ सकता हूँ? देखा प्रभु, मेरी बात सच निकली। उसे जरूर आपसे प्रेम हो गया है। प्रेम वरेम को गोली मार, अब मेरा कोई बंदोबस्त कर दे। क्या कर दूं? और उसकी गोल गोल पुतलियां नाचने लगी। मेरा मतलब है कि यहाँ कोई ऐसा कमरा नहीं जहाँ मैं इत्मीनान से बैठकर कुछ काम कर सकूं। स्वरूप जी ने यह किताब दी है और मैंने आज ही रात इसे पढ़ना चाहता हूँ। असल किताब को तो आपने पढ़ा ही नहीं और उसे बिस्तर पर खुली छोड़ आए हैं। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। किसी ऐसे कमरे में ले चल जहां मैं रात गुजार सकूं। मैं पन्ना को जगाना और बेआराम नहीं करना चाहता। तो मतलब ये हुआ, पन्ना सो रही है और आपके मन में उसकी चिंता जाग रही है। प्रभु सयाने कहते हैं जब। शास्त्रों के बच्चे, चुप रह और जो कुछ मैंने कहा है वो कर। उसने उल्लुओं की तरह दीदे घुमाए, फिर बोला, कमरे तो कई खाली पड़े हैं मगर आपके काबिल नहीं। हाँ, एक कमरा है, आओ मेरे साथ। फिर वो मुझे अपने हमरा लेकर एक तंग सी राहदारी में घुसता चला गया जो इमारत के शिमाली हिस्से में जाती थी। 50-60 कदम के बाद यह राहदारी एक और राहदारी से मिल गई जो शुरका गुरबा फैली थी। शास्त्र उसी राहदारी में मुड़ गया। फिर उसके कदम एक दरवाजे पर रुके। कबाड़ खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मैंने दिए की रोशनी में कमरे का जायजा लिया। 3 कुर्सियों के अलावा वहां एक काउच भी था और फर्श से सिर्फ 3 फुट की ऊंचाई पर दीवार में एक ताकचा था जिसमें क्षमादान रखा था। शास्त्रों ने काउच की तरफ इशारा किया, क्यों प्रभु, इस पर सो जाओगे? अरे ठीक तो है, फिर मैं बिस्तर का बंदोबस्त करता हूँ। साथ ही उसने ताकचे की क्षमा रोशन कर दी और मुझे वहीं छोड़कर चला गया। लौट कर आया तो बगल में एक मुक्त सिरसा बिस्तर था जिसे उसने काउच पर बिछाकर लगा दिया और बोला, अगर कोई चीज़ रह गई हो तो बताओ, वो भी ले आऊँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ दिया सलाई ताकचे में रख दो और चला जा। उसके निकलते ही मैंने दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी। फिर तकिए से कमर लगाकर कलमी किताब खोली और आराम से वर्क गर्दानी करने लगा। अब रात इस कदर बसीदा हो चुके थे कि ज़रा सी बेहतियाती से फट जाने का अंदेशा था। फिर जो असामी ज़बान इस्तेमाल की गई थी उसमें कदीम तिब्बती ज़बान के अलावा बर्मा की काचन रियासत की पुरानी बोली के भी बेशुमार अल्फाज मेरी समझ से बाला थे। ये किताब किसी बुद्ध बख्शू ने 1 सदी कबल लिखी और भगवान बुद्ध की उन नादर मूर्तियों की तारीख बयान की थी जो उनके स्वर्गवास होने के बाद यादगार के तौर पर बनाई गई थी। मगर उस नुस्खे में ज़्यादातर संगो चूब के अलावा सोने चांदी और संदल की मूर्तियों का जिक्र था और उनकी तारीख के साथ ये भी बताया गया था कि वह किस किस मुल्क के अजायब घर या पगोडे में हैं। कहीं कहीं पीतल की मूर्तियों का भी हाल लिखा गया था जिनमें अक्सर दूसरी सदी या उसके बाद तैयार की गई थीं। बहरहाल मुसन्निफ ने बड़ी मेहनत और तहकीक से काम लिया था। आधी रात तक मुताला करते करते मैंने पीतल की 3 ऐसी मूर्तियों का सुराग लगा लिया जो पहली सदी में बनाई गई थीं। उनमें एक लंदन के ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम में, दूसरी चीन के शहर मैकाओ के तारीखी पगोडा में और तीसरी कलकत्ता के फोर्ट विलियम अजायब घर में रखी गई थीं। मैंने अलहदा कागज़ पर उन तीनों मूर्तियों की तफसीलात दर्ज कर लीं। किताब के आखिर में 10वीं सदी बकरमी के बाद की मुख्तलिफ अनूप मूर्तियों की तारीख व तफसील लिखी थी जिसका पढ़ना या ना पढ़ना बराबर था, क्योंकि स्वरूप साहू जी सिर्फ पहली सदी में तैयार होने वाली पीतल की मूर्तियों में दिलचस्पी रखते थे। इसलिए आधी रात के बाद मैंने कलमी नुस्खे को एहतियात के साथ बंद करके एक तरफ रख दिया और शमा गुल करके बिस्तर में दुबक गया। और सारा दिन महागनी के जंगल में घूमता रहा था। पहाड़ी तराई के नशीबो फराज तय करने के बाद बदन थक गया था। फिर सावगारी में अपने पहले काम की अहमियत के पेश नज़र आधी रात तक मुताले में खोया रहा। यूँ जिस्म के साथ दिमाग की मुशक्क़त भी हो गई थी। थकन और नींद के खुमार से आंखें बूझल हो रही थी। फिर भी बिस्तर पर मैं लेटकर भगवान बुद्ध की मूर्तियों में उलझ कर रह गया और सोचने लगा, आखिर स्वरूप जी पीतल की कौन सी मूर्ति तलाश करना चाहते हैं। यही सोचते सोचते ना जाने कब गनुदगी का झोंका आया और मैं नींद के जंगल में पहुंच गया।
मालूम नहीं कब तक बेसुध सोया रहा, मगर इंसान का जहन तो नींद में भी जागता रहता है और मेरा जहन भी कुछ आहटें सुन रहा था, जैसे कोई कमरे में घुस आया हो। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो कोई ख्वाब था या नीम बेदारी की कैफियत, ताहम मैं महसूस कर रहा था कि सरहाने की जनब कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है, जिसका बोझ मेरे दिलो दिमाग पर पड़ रहा है। उस अनजाने बोझ को परे हटाने के लिए मैंने ख्वाब या गनुदगी के आलम में लेटे लेटे अपना दायां बाजू ऊपर उठाया और गालबनों से झटका भी दिया, ताकि जो कोई भी मुझ पर झुका हुआ है परे हट जाए। मगर मेरा हाथ किसी इंसानी जिस्म की बजाय सर्द और सख्त धात से टकरा गया, जिससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस वक्त जो कोई भी मुझ पर झुका हुआ है उसने पुराने ज़माने के शाह सवारों की तरह किसी धात का मजबूत सीना बंद और जोशन पहन रखा है। उस एहसास के साथ ही जहन में एक सर्द सी रोज दौड़ने लगी। मेरा हाथ धात को छूकर फिर सीने से आ लगा था। मैं दिल ही दिल में हैरान भी हो रहा था कि वो कौन हो सकता है, और अपने कल्बो जहन में खौफ भी महसूस कर रहा था। उसी हालत में आंखें खोलने की कोशिश की ताकि उसे देख सकूं, लेकिन आप शायद मेरी बेबसी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आंखों की पलकें बाहम प्यूसत होकर रह गई थी। वे पोटे फड़क और तड़प रहे थे, लेकिन आंखें कोशिश के बावजूद खुल नहीं रही थीं। मुझ पर शदीद खौफ गालिब आ गया था। सीने पर दबाव कुछ और बढ़ गया और सख्त तशवीश हो रही थी कि आखिर मेरी आंखें खुल क्यों नहीं पाती। अचानक दिल को ज्ञान हुआ कि इसी पुरअसरार हस्ती ने मेरी आंखों को अपने तिलस्म में जकड़ लिया है, जो मेरे ऊपर झुकी हुई है, और अगर मैंने इस कैद सहर से रिहाई हासिल ना की तो शायद हमेशा के लिए अपनी बेनाई खो बैठूं। उसी अजीब से एहसास के तहत मैंने अपनी कुव्वत इरादी से उस पुरअसरार हस्ती के तिलस्म को तोड़ देने का अज़म कर लिया, मगर जो ही मैंने यह इरादा किया वो हस्ती मेरे सरहाने से खुद पीछे हट गई और तेजी से घूमकर दरवाजे की तरफ हो ली। मैंने उसके बदन पर धात की खड़खड़ाहट साफ सुन रहा था। ठीक उसी लम्हे मेरी आंखें खुल गईं, लेकिन इर्द गिर्द तारीकी ही तारीकी थी। उस अथाह तारीकी में मेरे कान और मेरा जहन उस अजीब सी आवाज़ पर लगे हुए थे। किसी फौरी जज्बे के साथ मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कमरे में अगरचे अंधेरा था, लेकिन मैं खुद मुकम्मल तौर पर बेदार था। पहले अगर मेरा जहन नींद की हालत में कोई अजीबोगरीब सपना भी देख रहा था, तो बेदारी के साथ ही वो सपना, वो ख्वाब टूट जाना चाहिए था। लेकिन मैं ऐन हालत बेदारी में भी कमरे के अंदर धात के कदमों की आवाज़ सुन रहा था, जो इंसानी कदमों की चाप से मुख्तलिफ थी, और उस आवाज़ के साथ साथ एक अजीब सी खड़खड़ाहट भी समात से टकरा रही थी, जो गालिबन उस पुरअसरार हस्ती के जोशन और सीना बंद से पैदा हो रही थी। मुझ पर बदस्तूर एक अजीब सा खौफ तारी था, लेकिन हकीकत मालूम करने के लिए मैंने बड़ी इजलत से काम लिया और दिया सलाई जलाकर ताकचे में रखी शमा रोशन कर दी। कमरे में रोशनी हो गई और उस रोशनी में मेरी आंखों ने जो कुछ देखा, और वो इस कदर हैरतनाक, दहशतनाक और लर्जा खेज था कि मेरे पसीने छूट गए और मैं बमुश्किल अपनी चीख रोक सका। बल्कि दुरुस्त यूं है कि मारे दहशत के मेरे हलक से चीख निकल ही ना सकी। क्या आप यकीन करेंगे कि शमा की रोशनी में मैंने भगवान बुद्ध की पीतल की एक कद आदम मूर्ति को, जब वह हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया, अपने कदमों पर चलते और होले होले दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा। ये एक ऐसा खौफनाक नज़ारा था कि मैं कांपने लगा। उस वहशत अंगेज नज़ारे ने एक और बेहानक हकीकत वाज़े कर दी कि या तो मैं इस वक्त भी कोई डरावना सपना देख रहा हूँ, या जिसे मैं बिस्तर पर लेटे लेटे कोई ख्वाब या सपना समझ रहा था, वो भी इसी खौफनाक हकीकत का एक हिस्सा था। मगर इस अमर में कोई शुबा न था कि अब मैं जाग रहा था, और उस बेदारी का सबूत वो शमा थी जो ताकचे में रोशन हो चुकी थी, और जिसकी रोशनी में पीतल का भगवान अपने पांव घिसटता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मेरे देखते ही देखते भगवान की मूर्ति ने पीतल का बाजू बढ़ाकर दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकल गई। कवाड़ हल्की सी चढ़ड़ के साथ बंद हो गए। अब पीतल के कदमों की आवाज़ और धात की वही मखसूस खड़खड़ाहट राहदारी से आ रही थी, और आवाज़ से यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल न था कि भगवान बुद्ध की मूर्ति राहदारी की मशरिक़ की सिमत बढ़ रही है। शायद वह उसी सिमत से आई थी। मेरे जी में आई कि बिस्तर से उठकर दरवाजे पर जाऊं और राहदारी में निकल कर देखूं तो सही कि पीतल की एक बेजान मूर्ति आप से आप किस तरह चल रही है। लेकिन मेरे हवास पर खौफ इस कदर गालिब आ गया था कि बदन में जुम्बश करने की सकत ही बाकी न थी।
मैंने अपने जागते हुए जहन और बेदार जिस्म के साथ बिस्तर पर गुमसुम होकर रह गया था, मगर राहदारी में उभरने वाली हल्की हल्की खड़खड़ाहट और पीतल के कदमों की चाप बेदस्तूर सुन रहा था, जो बेतदरीज दूर और दूर होती जा रही थी। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि यह राहदारी शुरका गुरबा शरकन व गरबन वाक़या और बहुत तवील थी। उसके वस्त में एक दरवाज़ा था जो उसे 2 हिस्सों में तकसीम करता था। अचानक राहदारी का वही वस्ती दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और मूर्ति राहदारी के मशरकी हिस्से में दाखिल हो गई। पीतल की चाप अगरचे अब मदम हो गई थी, फिर भी मैं कुछ देर तक कान लगाकर उसे सुनता रहा। फिर यूं लगा जैसे मूर्ति कोई जीना चढ़ रही हो। आखिर पीतल की चाप बिल्कुल बंद हो गई, लेकिन चंद लम्हों के बाद मैंने कमरे की छत पर एक अजीब सी दमक महसूस की। फिर चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा छा गया। मेरी दास्तान पढ़ने वाले यकीनन इस वाक़े पर हैरान हो रहे होंगे, और सही फिक्र आदमी को उस पर हैरान होना चाहिए। मैं खुद एक तालीम याफ्ता आदमी हूँ और तोहमात में यकीन नहीं रखता, मगर जो कुछ मैंने बयान किया उसमें कोई मुबालगा, कोई झूठ नहीं। पीतल की एक मूर्ति को जिंदा इंसानों की तरह चलते फिरते देखकर मुझ पर जो कैफियत गुजर गई, उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि अल्फाज उस कैफियत का इजहार नहीं कर सकते। अजीब सी दहशत और लड़ते धड़कते हुए खौफ ने मेरे अज़ा को बिल्कुल सुन कर दिया था, और मेरा बदन अगर पीतल का नहीं तो पत्थर का ज़रूर बन गया था। अजीब बात यह है कि रात को कमरे का दरवाज़ा मैंने खुद बंद किया और उसकी कुंडी चढ़ा दी थी। फिर वह दरवाज़ा आप से आप कैसे खुल गया और मूर्ति कमरे में किस तरह दाखिल हुई। लेकिन ये सब कुछ सोचना कतई बेकार था। जब सावगारी में पीतल की एक मूर्ति जिंदा इंसानों की तरह चल फिर सकती है, तो बंद दरवाजे भी आप से आप खुल सकते हैं। 2-3 मिनट तक मैं बिस्तर पर साकतो सामत दम बखुद बैठा रहा। जब ज़रा होश आया तो उस ख्याल ने कल्बो ज़हन में एक नई बेचैनी और बदन में एक नई सनसनी पैदा कर दी कि दुनिया का एक महीरुल अकल और फ़िक्र शऊर की कुव्वतों को मफलूज कर देने वाला हैरत अंगेज़ वाक़या मेरी आंखों के सामने से गुजर चुका है। मगर मेरे अज़ा जो शिद्दत खौफ से सुन होकर रह गए थे, धीरे धीरे बहाल होने लगे। मैंने अपनी टांगों पर जो चंद लम्हे कबल पत्थर की मालूम होती थी हाथ फेरा और महसूस किया कि उनकी शरियानों में खून की गर्दिश फिर शुरू हो गई है। उसी हालत में अपने जिस्म को झंझोड़ा, बाजू हलाए और विस्टर्न की घड़ी पर नजर डाली तो ये देखकर हैरान और शशदर रह गया कि आज भी सुबह के 4 बजा रही थी। लेकिन आज घड़ी बंद न थी, बल्कि उसकी सुइयां मेरे दिल की तरह धड़क रही थीं। अब मैं बिस्तर में बैठा सोच रहा था कि जो कुछ मैंने देखा उसे क्या समझूं, वहम, सपना या हकीकत। अगर यह सपना था तो बेदारी के बाद उसका तसलसल क्यों जारी रहा, और मैं अपनी जागती आंखों से वो ख्वाब कैसे देखता रहा। अगर यह हकीकत थी तो पीतल की किसी बेजान मूर्ति का यूं जीते जागते इंसानों की तरह चलना फिरना कैसे मुमकिन है। मैं जितना इस वाक़े पर गौर करता उतना ही मेरी हैरत और परेशानी बढ़ती जा रही थी। ख्याल आया कि कहीं ये सब कुछ मेरे अपने ही वहमों, अपने ही ख्यालों की तस्वीर तो ना थी, क्योंकि स्वरूप साहु जी के साथ इब्तदाई ताल्लुक़ ही के ज़माने से पीतल की एक मूर्ति मेरे जहन में घुसी रही है। और जब से मैं सावगारी में आया हूँ कि अजीब वाक़यात के अलावा पीतल की मूर्ति भी मेरे दिमाग में लगातार खड़ी है। आज तो ख़ास तौर पर कलमी नुस्खे का मुताला करते हुए भी मुझे भगवान की ऐसी मूर्ति का ख्याल परेशान करता रहा जो उनकी वफ़ात के बाद पहली सदी में तैयार की गई थी। हत्ता कि जब मैं किताब बंद करके सोने के लिए बिस्तर में घुसा, मेरा जहन पीतल की एक ऐसी ही मूर्ति में उलझा हुआ था जिससे कोई भी माहिर नफ्सियात यही नतीजा अखज़ करेगा कि रात को जो कुछ मैंने देखा वो दरअसल एक ख्वाब ही था, क्योंकि बेशतर ख्वाब इंसानों के अपने ही परेशान ख्यालों की तस्वीर होते हैं। अगर ये नफ्सियाती तर्जिया दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो इसका मतलब ये था कि मेरा दिमाग इस कदर मजहूल और कुव्वत मशाहदा इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि मैं ख्वाब और हकीकत में फ़र्क नहीं कर सकता। गोया एक ऐसे दिमागी आर्जे में मुब्तला हो चुका हूँ जिसका अगर फौरी और बाकायदा इलाज ना कराया गया तो उसमें कुछ अरसे में मैं पागल हो जाऊँगा। उस वहशत असर एहसास ने मुझे लर्जा दिया, मगर न जाने क्या बात थी कि मेरे तमाम हवास इस कदर इस ख्याल की तरवीद कर रहे थे, और कल्बो ज़ेन के अलावा मेरी आंखों को भी इस बात पर इसरार था
कि मैंने सब कुछ बेकायमी होशो हवास में देखा है और ख्वाब कहकर इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता जिससे मैं थोड़ी देर पहले दो चार हुआ, मगर वाकया इस कदर अजीब, महीरुल अकल और नाकाबिल यकीन था कि हर सुनने वाला मुझी को पागल करार देगा। भला पीतल की मूर्तियां भी कभी जिंदा इंसानों की तरह चलती फिरती देखी गई हैं। ये भी सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जिंदा आदमी मूर्ति के खोल में घुसकर मुझे डराने आ गया हो, मगर किसी को ये नाटक खेलने की क्या जरूरत थी। फिर कोई जिंदा आदमी बंद दरवाजे से किस तरह खोल सकता है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि मैंने मूर्ति को जिस तरह घिसर घिसर कर चलते देखा, वो किसी जिंदा इंसान की रफ्तार से कतई मुख्तलिफ और मावराई अंदाज था। वो चाल किसी जीते जागते आदमी की हरगिज़ ना हो सकती थी, बल्कि यूं नजर आया था जैसे कोई रूह चल रही हो। लिहाजा साबित हुआ कि थारो कैशफ का दिमाग चल गया है और वो ऐसे अनहोने वाक़यात भी देख लेता है जो हकीकत की दुनिया में रूनुमा नहीं होते, या फिर वो एक नाकाबिल यकीन कहानी सुनाकर खुद को एक माफूकल फितरत आदमी साबित करना चाहता है। अचानक ख्याल गुजरा कि और किसी से ना सही लेकिन शास्त्रों से जरूर पूछना चाहिए कि क्या सावगारी में भगवान बुद्ध के इन आखिरी अयाम की कोई मूर्ति है जब वो बेहद लागर और हड्डियों का ढांचा बन गए थे, और क्या किसी और ने भी पीतल की इस मूर्ति को चलते फिरते देखा है। मगर फौरन इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि ये बात सुनते ही शास्त्रों पहले तो मेरी हंसी उड़ाएगा, फिर अपने मंतकी लहजे में जवाब देगा, प्रभु पीतल की मूर्तियां सिर्फ सपनों में चल फिर सकती हैं। जिस तरह ख्याली घोड़े सिर्फ आदमी के ज़हन में दौड़ा करते हैं, भला उन बातों का हकीकत की दुनिया से क्या वास्ता।